امن اور ترقی کی ضامن اپنی پارٹی۔ ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ حال ہی میں کیے گئے زرعی اصلاحات کا مقصد کسانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ من کی بات پروگرام کے دوران وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ڈی ڈی سی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے چناو مہم آج اختتام پذیر۔ مختلف سیاسی پارٹیوں نے کیا چناو ریلیوں کا اہتمام۔ بی جے پی نے جاری کیا اپنا انتخابی منشور۔ کورونا وائرس کا ویکسین اگلے مہینے دستیاب ہونے کی WHO نے جتائی امید۔ بونیار اوڈی میں دل خراش واقعہ، ایک ہی کنبے کی 3 خواتین جاں بحق۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حال ہی میں کیے گئے زرعی اصلاحات سے کسانوں کے لیے نئے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے ایک اور شمارے میں آج وزیر اعظم نے کہا کہ کسان ایک طویل عرصے سے ان اصلاحات کا مطالبات کر رہے تھے اور ان کی حکومت نے کسانوں کا یہ مطالبہ پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کافی غور و خوض اور بحث و مباحثے کے بعد زرعی اصلاحات کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ کسانوں کے لیے نئی संभावनाओं کے द्वार بھی کھولے ہیں۔ برسوں سے کسانوں کی جو مانگ تھی، جن مانگوں کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی سمے میں ہر راجنیتک دل نے ان سے وعدہ کیا تھا، وہ مانگیں پوری ہوئی ہیں۔ کافی وچار ومرش کے بعد بھارت کی संसद نے कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया۔ इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। وزیر اعظم نے کہا کہ درست علم جو غلط تاثرات اور افواہوں سے مبرہ ہو، ہر فرد کے لیے مواقع میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بحران کے دور میں ثقافت کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کا سامنا کرنے اور اسے نمٹنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے ثقافتی وراثت کو ٹیکنالوجی کے وسیلے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی اہمیت اجاگر کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قوم کل گرو نانک دیو جی کا پرکاش اتسو منائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گرو نانک دیو جی کی تعلیمات کی بازگشت وینکوور سے ویلنگٹن اور سنگاپور سے جنوبی افریقہ تک سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس نومبر میں کرتارپور صاحب کاریڈور کا کھولا جانا تاریخی اقدام تھا۔ بہت ہی ایتہاسک رہا۔ اس بات کو میں جیون بھر اپنے ہردے میں سنجو کر رکھوں گا۔ یہ ہم سبھی کا سوبھاگیہ ہے کہ ہمیں श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाई बहनों के लिए अब दरबार साहिब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व भर की संगत दरबार साहिब के और करीब आ गई है। وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن مرحلوں کے بعد اب ملک نے کووڈ-19 ویکسین کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس دوران من کی بات پروگرام کے آج کے شمارے کا کشمیری ترجمہ رات 8 بجے DD کوشر سے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ارے واہ، لیجنڈ کی بیٹ، اس سے میں کھیلوں گا۔ فیوچر بیٹنگ لیجنڈ میں۔ اس میں جس کا نام لکھا ہے بیٹ اسی کو ملے گی۔ ارے یار دیکھا، اگر اس پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا تو کتنی دقت ہو جاتی۔ اس لیے RBI کہتا ہے بینک اکاؤنٹ ہو یا بینک لاکر، اس میں نامنی کا نام ضرور درج کرے تاکہ آپ کی جمع پونجی اسی کو ملے جسے آپ نے نامزد کیا۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ نمستے، آداب، ست شری اکال۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل الیکشنز، پنچایت بائی الیکشنز 2020 جموں اور کشمیر میں شروع ہو چکے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے صحیح امیدوار کو چنیں جسے گاؤں کی ترقی ہو اور خوشحالی ہو۔ میں ثنا دوا، فیمنا مس انڈیا 2017 آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس الیکشنز 2020 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ چلیے اس پر عہد کر لیں کہ اپنا ووٹ جاتی، دھرم اور پیسے پر نہیں
बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu and Kashmir. आपका एक बार फिर खैर मकदम है। डीडीसी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज खत्म हो रही है। पहले मरहले की तरह ही इस मरहले के लिए भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके लीडरों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव मुहिम का एहतमाम करके वोटरों को लुभाने की कोशिश की। इस मुहिम के तहत 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के कई हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इस मरहले के तहत बारामूला के कुंजर और जैनागीर, कुलगाम के मजगाम और पोम्बे, अनंतनाग में शांगस, पुलवामा में शादी मरग और त्राल, कुपवाड़ा के रामहाल, रड़ी और चौकीबल, बडगाम के बीरवा, बाड़ीपोरा के गनस्तान और नौगाम, श्रीनगर के दोम और सोम, श्रीनगर 1 और 3, कमरवारी अव्वल और दोम, शोपियां के रामनगरी और कांजी उलर और गांदरबल जिले के कंगन A, B और C में वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने यूटी में जिला तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया। पार्टी के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विभूत गुप्ता ने श्रीनगर में यह मंशूर जारी किया, जिसे विजन दस्तावेज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन 2020 का नाम दिया गया है। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान रक्षा अंद्राबी, अशोक भट्ट और दीगर के लीडरान मौजूद थे। चुनावी मंशूर में जम्मू कश्मीर की तरक्की, यहाँ के लोगों के फलाह बहबूद, बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार, डेलीवेजरों, कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरों की मुस्तकिली, अराजी पर नाजायज कब्जा और रिश्वत सतानी के खिलाफ जंग के हवाले से किए गए और किए जा रहे इकदाम का तज़किरा किया गया है। इसके अलावा दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में आई तब्दीली का तज़किरा भी इसमें किया गया है। इस दौरान बीजेपी की तरफ से आज चौकीबल कपवाड़ा में वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए बीजेपी के सरकर्दा लीडर और मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन ने गुपकार डिक्लेरेशन की सख्त मुखालिफत की है और कहा है कि इन लोगों ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया है और धोखा दिया है। पार्टी ने कुंजर टाउन हॉल में भी एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस दौरान पार्टी लीडरों ने दीगर सियासी पार्टियों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने यहाँ के लोगों के लिए फलाह बहबूद की कभी भी फिक्र नहीं की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो डीडीसी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। इस मौके पर और लोगों के अलावा बीजेपी लीडरान विभूत गुप्ता और अली मोहम्मद डार भी मौजूद थे। इस दौरान पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब से डीडीसी चुनाव कराने का ऐलान हुआ है और जब से पीडीपी ने इनमें शिरकत का फैसला किया है, यहां एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि किसी को बात करने तक की भी इजाजत नहीं है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चुनिंदा सियासी लीडरों और वर्करों को हरासा किया जा रहा है। पीडीपी सदर ने कहा कि इलेक्शन किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में ही मुस्मिर है। उन्होंने कहा कि सरहद पर रहने वाले लोग कई तरह की मुश्किलात से दोचार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त का तकाजा है कि मसाइल को हल करने और सरहद पर रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी मुतल्लिकीन से बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि अराजी पर नाजायज कब्जा हटाने के अमल के दौरान बिला किसी तफर्रुक के कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और पार्टी से वाबस्ता पार्लियामेंट मेंबरान मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने कहा कि वस्ती, शिमाली और जनूबी कश्मीर में खास मकासद के तहत दौरान शब पोलिंग मराकज़ को दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा है कि सोवरा, खनमू, दारा, फकीर गुजरी, अनंतनाग और पहलगाम में दौरान शब पोलिंग मराकज़ को तब्दील करना इलेक्शन कवानीन के बिल्कुल मनाफी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मुहिउद्दीन, जो कि उड़ी हल्के के लिए जिला तरक्याती काउंसिल के चुनाव लड़ रहे हैं, ने आज इस हल्के के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कमलकोट में वर्करों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। इस दौरान पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने एक बयान में कहा है कि जिला बड़गाम में डीडीसी और पंचायत असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि ऐसी सूरत हाल में ये उम्मीदवार मौसर तरीके से चुनाव मुहिम नहीं चला पा रहे हैं और मुतल्लिका हलकों में नहीं जा पा रहे हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कल जिले वुलर में ड्रजिंग के काम की पेशरफ्त का मुआयना किया और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। उनके हमरा डीसी बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद और दीगर मुतल्लिक अफसरान भी थे। इस मौके पर बताया गया कि झील में दरख्तों को काटने के अलावा ड्रजिंग का काम शद्दोमत से जारी है। सूबाई कमिश्नर ने अफसरान को इस आबगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
41,810 नए केसों के साथ ही मुल्क में कोविड-19 के केसों की मजमूई तादाद 93,92,920 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 498 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद 1,36,696 हो गई है। फिलहाल मुल्क में मजमूई मरीजों की तादाद 4,53,956 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,298 लोग शिफायाब भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 471 नए कोविड मामलात की तस्दीक हुई है, जबकि इस मुद्दत के दौरान यूटी में 491 मरीज शिफायाब हुए हैं। आज सामने आए कोरोना मरीजों में से 211 का ताल्लुक वादी से, जबकि 260 जम्मू सूबे से सामने आए हैं। यूटी में कोरोना वायरस मामलात की कुल तादाद 1,09,854 तक पहुंच गई है, जबकि सेहतयाब हुए मरीजों की कुल तादाद 1,03,082 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में सरगर्म मामलात की तादाद 5,087 है। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक यूटी में आज 5 कोरोना मरीज फौत हुए, जिनमें से 3 जम्मू और 2 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम WHO की चीफ साइंसदान डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस एतमाद का इजहार किया है कि कोरोना टीका अगले महीने तक दस्तयाब होगा। कोविड-19 के मौजू पर फेसबुक पर बराह रास्त मुनक्किदा स्वामी रामानंद तीर्थ लेक्चर सीरीज में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीके पर काम हतमी मराहिल में है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों के जरिए 1-2 महीने के अंदर वैक्सीन दस्तयाब कराए जाने की उम्मीद है। सिख पंथ के बानी गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां जन्मदिन कल मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अवाम को बिलखसूस सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि गुरु नानक देव जी का ईमानदाराना तर्ज जिंदगी और बेलोस खिदमात एक हम आहंग समाज के क़याम के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP के हरबख्श सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने भी इस मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बूंदाबूंदी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहाँ कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।